Hello, Assalamu alaikum. I hope every one of you is well. And how is this learning from home and staying in home situation going for everyone? Everyone's fine. Yes, ma'am. So let's hope कि ये COVID थोड़ा सा contain हो जाए तो we can have our classes in university because obviously learning is suffering a lot. आप लोगों की उस तरह learning नहीं होती जिस तरह के हमारी एक्चुअल क्लासेस में होती है online have obviously online classes have some limitations to it. So today we are going to have a lecture about method and material, and today we are going to study about arches and lintels, basically lintels and arches. I think I'm going to present my screen now. Not the option of PowerPoint. So my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to have a lecture about lentils and arches. Today's learning outcome that you will learn about today's the objectives for today's lecture are to let you know what is a lintel and what is arch and what are the different classifications of a lintel, and then what are the different classification of the arches, and what are the different kinds of tile lentils and arches that we have. So first, because I think so we talked about it in our technical drawing subject कि जब मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप लोग सेक्शंस में आ रहे हैं तो सेक्शन के ऊपर जहां से आपका डोर कट रहा है वहां पे आपने 9 इंचेस का लिंटल डालना है, तो आपने 9 इंचेस का एक ऑफसेट देना है और वहां पे आपने कंक्रीट की फिलिंग करनी है. So why, what is lintel and why we need it, and what is the purpose of lintel in a house or in a structure? So in order to study that, we will have today's lecture on lintel. So basically, what is a lintel? Lintel is defined as a horizontal structural member which is placed across the opening if the structure remains in the position by the resistance from the support. So when we have any opening in our home or in any building, that opening might be a door or that opening can be a window. So whenever we have an opening in the wall, we have this whole wall, brick wall. So when we have opening from it, the structurally the wall become weak because हमने उसके अंदर से अगर आप if suppose let's just consider it कि अगर आप blocks भी बना रहे हो, आपने blocks का एक mass खड़ा किया है, that would be very strong. लेकिन अगर आप उसके बीच में से कुछ blocks निकाल लोगे तो वो जो एक structure है that would become weak. तो वो किसी भी time that structure could collapse. So in order to prevent that collapse, when we have any opening in a house, we provide lintel on it. ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है जहां जब भी हमने कोई ओपनिंग दी है उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है जो हम देते हैं. तो व्हाई वी नीड दिस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बिकॉज इट फॉर्म्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस इससे बन जाती है जिसकी वजह से फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं होता. So going forward, what is an arch? Basically, arch and lintel both have the structural purposes. An arch can be defined as a mechanical arrangement of wedge shaped blocks of stone or bricks mutually supporting each other and supported at the end by pairs or abutments. An arch is a structure that spans a space and supports structure and weight below it. आपने देखी होगी कि आर्च क्या चीज है. आप लोगों को वैसे तो पता होगा ना कि आर्च क्या है, कि एक आपका सर्कुलर होता है जो कि टू कॉलम्स के ऊपर एक सर्कल होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ आर्चेस एग्जिस्ट करती हैं. तो आर्चेस वर आल्सो यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पसेस. ठीक है, अगर हम कहीं ओपनिंग दे रहे हैं तो वहां पे हमने आर्च दे दी है ताकि जो हमारे वहां पे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं उनकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे, तो हम वहां पे आर्च भी दे सकते हैं. तो आर्चेस आर अपीयर टू बी वेरी they are ancient. They are present in history. Arches appeared as early as in the second millennium BC in Mesopotamian brick architecture, and their systematic use started with the ancient Romans, who were the first to apply the technique to a wide range of structures. The Romans, the time.
in ancient times, the Roman would build water channels. These water channels are basically for the to bring water. I think someone joined. Someone wanted to join. They added him. Where did he go? Okay. So what Romans do, they have to carry a water from a river because in that time we don't have that tap system or that piping system कि जिससे हम पानी लेकर आ रहे हैं. तो what they would do वो उनके पास एक कोई पानी का सोर्स है like there is some river जहाँ से वो पानी लेकर आ रहे हैं और उन्होंने पूरी because they are very civilized. तो जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा है कि हिस्ट्री में जहाँ पे भी दरिया के इर्द गिर्द जो हैं वो कॉलोनीज बनती थी लोग वहां पे मतलब वहां पे डेरा डाल लेते थे ठीक है और वहां पे अपनी फसलें वगैरह उगाते थे और वहां उनके पास पानी की सहूलत मौजूद होती थी लाइक अगर लाहौर भी है इट डेवलप्ड अराउंड रावी रिवर so इस तरह in Roman times they don't just developed a city around the river they basically go far beyond the river and फिर जब उसके बाद उन्होंने उस पानी उनको obviously पानी is the basic necessity water is the basic necessity and they want to transfer it तो उन्होंने क्या किया था कि they build ब्रिजेस जिसके ऊपर चैनल्स उन्होंने वाटर चैनल्स बनाए थे जिनको एक्वाडक्ट्स कहते थे और वो एक्वाडक्ट्स हवा में होती थी लाइक उनके नीचे पूरा एक आर्च का सिस्टम चल रहा होता था और उस आर्च के ऊपर पूरी एक वो जो है ना पाइपिंग चल रही होती थी वो दैट इज नॉट बेसिकली पाइपिंग वो एक डक्स एक्वाडक्ट्स होती थी कि जिसके थ्रू वो पानी ट्रांसफर करते थे लाइक वी हैव नाउ डेज वी हैव दिस पाइपिंग सिस्टम अंडरग्राउंड जिसमें हमारे पूरी वो पाइप्स चल रहे होते हैं पानी का और वहां से पानी आ रहा होता है इन दैट टाइम्स डोंट हैव दैट पाइप्स और दिस टेक्नोलॉजी सो हमें आर्चेस वहां भी देखने को मिलती हैं कि वो जो उन्होंने ऊपर एक्वाडक्ट्स बनानी थी तो उनके नीचे उन्होंने कोई ना कोई सपोर्ट देनी थी तो दे यूज्ड आर्चेस so arches go way beyond in history because of its structural purposes so I think we are going to study about lintel जब हम लेंटल की बात कर रहे हैं कि बेसिकली लेंटल एंड आर्च बोथ आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस so when we are talking about lintel could be of any material like it could be of brick it could be of of concrete or it could be of stone so in the specific picture you can see that there is a window opening and then there is this door opening so where is lintel the above 9 inches surface and it also depends कि हमारे पास कितनी बड़ी opening है जिस तरह नॉर्मली वी हैव डोर्स एंड विंडोज इन आवर होम्स तो वो इतने वाइड नहीं होते तो हम उन पे 9 इंचेस का लिंटल डालते हैं बट द डेप्थ ऑफ द इंचेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पैन ऑफ द ओपनिंग कि अगर हमारे पास जो ओपनिंग है अगर उसका स्पैन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो लिंटल की डेप्थ होगी वो भी ज्यादा होगी तो विंडो पे नीचे जो हमने तब भी हम लोगों ने इन टेक्निकल ड्राइंग विच स्टडीड के जो विंडो के नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम सिल लेवल कहते हैं so the below the opening of a window is called sill level and the above of the opening window opening is called lintel level and similarly if there is any opening if there is a door so we'll put a lintel over it because ताकि structure हमारा collapse ना करे ठीक है जिस तरह आपको इसके अंदर शो हो रहा है कि this is lintel and this is sill level this is this and this one is also lintel this is the window opening this is some kind of a door opening और यहाँ पे बाकी जो structure है उसको हमने bag कहा है Then there are different classifications of timber. Obviously, classification depends upon the material from which the lintel is made. For example, there are timber lintels, wooden lintels we exist करते हैं. Then there are stone lintels, brick lintels, reinforced brick lintels. Then there are steel lintels, reinforced cement concrete lintels. So generally in homes we have concrete lintels, but the areas we have like in our northern areas where the construction is done by wood. So majorly we have wooden lintels there, and I think in west where they usually construct their buildings through the wooden they have wooden structure or if they have any steel structure तो वहाँ पे जो आपके lintels होते हैं they are of steel or they are of timber और इसी तरह in some areas where stone is their local material so the lintel could be of stone also because these materials these specifically timber stone brick and concrete and steel have the strength in them
they can withhold the structure. So basically, in these materials, wood is the weakest one. Wood timbers जो हैं वो बहुत ज़्यादा strong नहीं होते, but the concrete timbers are very strong basically. And stone lentils are also very strong, but they are very heavy. Concrete is heavy also, but stone lentils are more heavy than concrete lentils. And but they both are strong and they both are durable, and they both don't they help to prevent the structure for collapse. So there are timber lentils. You can see this lentil in this picture. As I told you earlier, they can easily available in hilly areas. Relatively, वैसे भी wood is costly because the wood is a natural material and obviously our forests are depleting. तो जो चीज जितनी कम है उसकी price उतनी ही ज़्यादा है. Similarly, wood is also expensive. So when we have a timber lintel, it is expensive and structurally weak and also vulnerable to fire. It can easily decay if not properly taken care of. लकड़ी को जिस तरह आई थिंक लकड़ी को भी आई थिंक टर्माइट लग जाती है. आई एम नॉट श्योर, बट जो लकड़ी है अगर उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो क्या सकेंगे वो खराब हो जाती है. ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा कोई आउटडोर में लेंटल है जहाँ पे बारिश उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली पड़ रही है तो वो जल्दी खराब हो सकता है. और फिर again it is costly and structurally it is weak also. Stone and concrete are strong lintel materials basically, but the timber lentils or the wood lentils are weak. So then there are the stone lentils. Stone lentils are easily available, but stone lentils are also easily available in only areas which have, they have stone locally. For example, in our hilly areas, they have a lot of stone, but obviously in Lahore, we don't have much stone locally available. मतलब locally भी ये कि local के भी फिर आपके पास radius होते हैं. एक आपका city radius है कि जिसमें आपका बहुत ही आपको लोकली मटेरियल मिल रहा है और आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत कम आ रही है. देन देयर इज विद इन द कंट्री आपको वो मटेरियल मिल रहा है, दैट इज आल्सो समवट अ लोकल मटेरियल. अगर आप अपने हिली एरिया से स्टोन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. देन देयर इज एन इंटरनेशनल मटेरियल कि अगर कोई मटेरियल आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज इंटरनेशनल मटेरियल, फिर ऑब्वियसली वो लोकली अवेलेबल नहीं है. तो हमें भी लाहौर में लोकली स्टोन इस तरह अवेलेबल नहीं है जैसा हिली एरियाज में अवेलेबल है. सो जो स्टोन लिंटल है कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल स्टोन स्लैब ऑफ ग्रेट थिकनेस. कि अगर आप एक स्टोन की इतनी ज्यादा भी थिकनेस वाली स्लैब ना डालें, जो लिंटल है अगर हम वो बहुत ज्यादा थिकनेस वाला भी किसी ओपनिंग के ऊपर ना डालें तो स्टिल इट वुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इट्स सेल्फ स्ट्रॉन्ग जो स्टोन है इट्स अ ड्यूरेबल मटेरियल एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल व्हिच हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ. तो जब भी अगर हम किसी ओपनिंग के ऊपर स्टोन लिंटल डाल रहे हैं तो वी डोंट नीड अ वेरी लार्ज थिकनेस. हम छोटी थिकनेस का भी वो लिंटल डाल सकते हैं, ठीक है, एंड दैट वुड सर्व द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ of that structure. But obviously again that thickness of stone lintel is also depends upon the span of an opening. So due to high cost and its inability to withstand the transverse load, it is not commonly used. Transverse load is कि जो अपनी load से collapse भी हो सकता है. तो because stone का ऊपर जब stone is very heavy, तो जब बहुत ज्यादा स्टोन हैवी है वो स्ट्रक्चर को तो ड्यूरेबिलिटी दे रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि वो अपने ही लोड से कोलैप्स कर सकता है. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी रिकमेंडेबल. एंड अगेन जब आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं स्टोन तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सारी कॉस्ट भी इसके अंदर डल रही है, और फिर जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको मार्केट में मिलेगा भी महंगा. अगर आप कोई लोकल मटेरियल लेते हैं तो आपको मार्केट में मिलता भी सस्ता है, और फिर आपके उसके ऊपर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती. तो दिस इज स्टोन लेंटल्स. अब ये देखें जिस तरह के ये लेंटल्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पे इतने देखने को नहीं मिलते. मे बी यू कैन सी देम इन सम कंट्री हाउसेज और समवेयर इन वेस्ट, बट या फिर हमारे किसी हिली एरियाज में आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन लाहौर में हमें ऐसे लेंटल्स नहीं नजर आते. अब जिस तरह यहाँ पे वुडन लेंटल्स हैं, तो ये वाली जो पिक्चर है हमें अक्सर अगर हम कहीं हिली एरियाज में जाएं तो वहां पे हमें इस तरह के लेंटल मिल सकते हैं, लेकिन लाहौर में भी टिम्बर लेंटल्स हमें बहुत कम नजर आते हैं.
Then there is reinforced brick lintels. They are used for if we have a brick structure. So when we and in that brick structure we have a very large opening of a large span, and तो फिर हम वहाँ पे जो है वो reinforced brick lintels use करते हैं. What we do in reinforced brick lintels is कि हम brick के साथ यहाँ पे अंदर mild steel bars add करते हैं. So adding these steel bars, they can increase the strength of a brick, and they can increase the overall strength of a structure. So because they are very common, because they are very durable, and they have the strength and fire resisting properties. And these जो हमारे पास brick के अंदर हम ये joints लगाते हैं, they are of cement concrete. अब जिस तरह हम लोगों के घरों में तो हम यूज करते हैं मेजरली कंक्रीट लिंटल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है. But अगर हमारे पास there is a large building which have an opening of large span, तो ये कोई commercial building है जिसके अंदर we have a very large opening or there is a very large span, so then we use this reinforced brick lintels because mostly our structures are made of brick. So if the structure is in brick and the span is very large, then we will have the lintel reinforced lintels जिसके अंदर ये जो हमारे different steel bars जो हैं वो हम add अंदर करते हैं, so they increase their strength. Then there are steel lintels provided at large opening and where the superimposed loads are heavy. Superimposed loads वो लोड होते हैं जो कि ऊपर आपका स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है. लाइक इफ सपोज अगर कोई आपकी बिल्डिंग है और आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपका कोई ओपनिंग है जो कि काफी बड़ी ओपनिंग है और जो ऊपर बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो जो उसके ऊपर इम्पोज्ड लोड है जो लिंटल ने मतलब जो लिंटल वुड बियर द लोड वो बहुत ज्यादा होगा. So if there is a large superimposed load and the span is also large, then we use these steel lintels. Basically, अब हम इतने ज़्यादा ये steel lintels नहीं भी use करते, लेकिन हमारे जो पुराने घर होते थे या अगर कभी आप जो पुरानी कंस्ट्रक्शन होती थी या अगर आप कहीं गांव वगैरह में अगर आप घर देखें तो उनमें जो है हमने स्टील लिंटल्स यूज किए होते हैं, ठीक है. और उसके अंदर जो छत भी होती है वो कंक्रीट की नहीं होती, उसके अंदर इसी तरह स्टील बार्स होती हैं या फिर जिस तरह हम पूरा एक स्लैब डालते हैं वो उस तरह नहीं होती. उन्होंने क्या से कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा ज़हन में, स्टील की वो दी होती हैं ड्रॉप डाउन जो स्लैब होती है ना वो स्टील की होती है, तो उसमें दे मोस्टली हैव दिस स्टील लिंटल्स आल्सो. सो जो स्टील लिंटल्स हैं दे हैव रोल्ड स्टील जॉइस्ट आइदर यूज सिंगल और इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 यूनिट्स जॉइंट विद बोल्ट्स. तो जिस तरह भी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सिंगल एक स्टील की भी लिंटल बनता है, बट अगर आपके पास पैन बहुत ज्यादा है और आपका सुपर इम्पोज लोड ज्यादा है तो फिर हम जो है वो 2 or 3 बार्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है. और वो जो बार्स होंगी वो हम बोल्ट्स के साथ जो है नट एंड बोल्ट्स के साथ हम उसको उस लिंटल को स्टील लिंटल को हम वहां पे प्लेस कर रहे होते हैं. So you can see from these lintels that every different lintel have different properties. Like timber could be used in hilly areas, but it is not very strong. It is vulnerable. And then there are reinforced brick lintels. I think I skipped the brick lintels. Yes. Then there's a brick lintels also. These are the stone lintels which are heavy, also, which are very heavy, but obviously they are durable also. Then there's a brick lintel. Brick lintel is hard, well burnt first clay brick, suitable for small span. The bricks have frogs or are more suitable. अब कोई मुझे बताएगा कि ब्रिक जो है उसके अंदर फ्रॉग ब्रिक के कौन से पार्ट को हम फ्रॉग कहते हैं. We studied that in our first lecture जब हमने brick bonds और brick masonry पढ़ी थी. What is frog in a brick? Anyone have any idea? किसी को नहीं पता कि frogs क्या होते हैं? जो अपर साइड होती है, जो ब्रिक के अंदर एक रिसेस्ड एरिया होता है ना, जो हमारी ऊपर वाली साइड होती है जो दरम्यान में थोड़ा सा रिसेस्ड एरिया होता है अंदर, उसको हम फ्रॉग कहते हैं. समझ लगी कि नहीं लगी किसी को? बताओ आप सबको समझ लगी है कि नहीं लगी? लेट्स जस्ट हैव हियर कि भाई फ्रॉग क्या होता है. फ्रॉग इन अ ब्रिक, ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज बेसिकली अ फ्रॉग.
ये पता चल रहा है अब आप लोगों को? जो हमारा लॉन्गर पार्ट होता है वो स्ट्रेचर होता है, जो हमारा शॉर्टर पार्ट होता है वो हेडर होता है, और जो बीच में रिसेस्ड पार्ट होता है वो फ्रॉग होता है। Yes, ma'am. ठीक है। तो इसको हम फ्रॉग कहते हैं। तो जो ब्रिक्स हैव, जब हम लिंटल, अगर हम ब्रिक्स का लिंटल डाल रहे हैं, तो अगर जो ब्रिक्स हैं, ऑब्वियसली जो जो बीच के अंदर, जिसके अंदर रिसेस होता है ना, दैट इज, वो एक ब्रिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है। तो इफ इफ द ब्रिक्स हैव फ्रॉग इन देम, तो वो ज्यादा सूटेबल हैं, वो ज्यादा ड्यूरेबल हैं, एंड दे हैव मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द ब्रिक्स विच डोंट हैव एनी फ्रॉग in them. So bricks normally is suitable for smaller spans. For example, in our houses, जिस तरह हमारे पास we have a door of opening 3 feet, तो वहाँ पे हम brick lintel डाल सकते हैं। ठीक है। But it is not suitable for the large spans. For the large span, we can use concrete. Either we can use concrete or stone or steel bars or reinforced brick lintels. But brick lintels, basically simple brick lintels, are only used for small spans. अगर आप ज्यादा स्पैन के लिए करेंगे तो क्योंकि ब्रिक का इटसेल्फ एक वेट होता है। जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि हाई राइजेस भी ही जो हैं, दे आर नॉट ऑफ ब्रिक। नॉर्मली जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिक में हो रही है, तो हमारे हाई राइजेस ब्रिक में क्यों नहीं बनते? ड्यूरिंग अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और पहली पहली दफा हाई राइजेस बन रहे थे, क्योंकि हाई राइजेस ऑब्वियसली दे कम लेटर इन 18th सेंचुरी, इन द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इन अर्ली 1900s जो है वो स्काई स्क्रेपर्स बनना स्टार्ट हुए थे। तो उस टाइम पे ब्रिक के स्काई स्क्रेपर्स भी बने थे, बट विद ब्रिक यू हैव लिमिटेशन। आप 10 to 12 फ्लोर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इटसेल्फ जो ब्रिक का लोड होता है, जो अपना ही ब्रिक का लोड होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप इतनी ज्यादा ईंटें जब ऊपर 10 to 12 फ्लोर तक आप रखते हैं, तो वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर हो जाता है और वो अपने ही लोड से कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके लार्जर स्पैन्स होंगे तो उसके ऊपर आप ब्रिक लेंटल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली द लेंटल हेयर, द पर्पस ऑफ लेंटल हेयर इज टू गिव स्ट्रेंथ। लेकिन अगर लेंटल अपने, वो ब्रिक जो है वो अपनी बोझ से नीचे गिर जाएगी, तो ऑब्वियसली द पर्पस ऑफ गिविंग स्ट्रेंथ वुड बी वेनिश्ड। तो इसीलिए अब जो हम लोगों के हाई राइजेस भी बनते हैं, यू कैन सी देम कि वो बहुत लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है। लाइट वेट स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि वो कॉलम स्ट्रक्चर होता है, कि कॉलम के ऊपर जो है वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, और वो कॉलम्स जो होते हैं दे आर आइदर ऑफ कंक्रीट और दे आर ऑफ स्टील। तो वो जो कॉलम स्टील स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी कॉलम्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है, और जो आपकी दीवारें होती हैं वो कर्टन वॉल्स होती हैं। दीवारें आपका लोड बियर नहीं कर रही होती बेसिकली। अगर दीवारें लोड बियर कर रही हो तो वो फिर आपका ब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि विच इज नॉट वेरी सूटेबल। कि अगर आपने काफी ऊंचा हाई राइज बनाना हो, अब वी हैव हाई राइजेस जो कि 200-300 फ्लोर्स तक भी हैं। I don't think so. I don't know exactly. Basically, I think Burj Khalifa is the largest, tallest building of world, and they have 200 plus floors. So you can't imagine 200 plus floors in brick. It would collapse. So जो अगर आपके कोई भी, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज को जहन में रखो कि फॉर हेवियर स्ट्रक्चर्स आप नहीं यूज कर सकते। यू नीड टू यूज इन अदर मटेरियल लाइक कंक्रीट और लाइक स्टील, जो कि स्टील जो है वो इटसेल्फ थोड़ा लाइटर मटेरियल होता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो आप फिर इसीलिए जो है हाई राइजेस भी कॉलम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो जब हम लेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो लेंटल्स भी, ब्रिक लेंटल्स आर ओके फॉर स्मॉलर स्पैन्स, बट दे आर नॉट ओके फॉर लार्जर स्पैन्स। तो देन वी टॉक्ड अबाउट रीइंफोर्स्ड ब्रिक लेंटल्स, के जिसके अंदर हम लेंटल्स ब्रिक का ही डालते हैं, लेकिन उसके अंदर हम जो है वो स्टील बार्स डाल देते हैं, एंड दीज स्टील बार्स गिव लॉट ऑफ गुड स्ट्रेंथ। तो फिर जब हम उसके अंदर स्टील बार्स होती हैं ब्रिक के अंदर, तो देन वी कैन यूज देम फॉर द लार्जर स्पैन्स। देन वी कैन यूज दिस रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल्स फॉर द लार्जर स्पैन्स। देन देयर इज अ स्टील लिंटल, as we started this के भाई स्टील लिंटल जो है वो हमारा लार्ज स्पैन के लिए यूज हो सकता है, इट्स अ लाइट और स्ट्रक्चर, और ये बोर्ड्स के साथ यूज होता है। फिर देन वी हैव दिस रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल, बट जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो कंक्रीट का लिंटल होता है, commonly this is very commonly used in Lahore also,
और मोस्टली जो हम लोगों के घरों में, हम बात में अभी पहले भी आपके साथ बात कर रही थी कि जो लिंटल्स होते हैं दे आर ऑफ कंक्रीट, दे आर कॉमन इन यूज एंड दे माइट बी प्रीकास्ट। प्रीकास्ट और ऑन साइट कास्ट ये होता है कि कोई चीज आपने, इफ सपोज अगर आप कोई घर बना रहे हैं, तो प्रीकास्ट लिंटल से मुराद ये है कि जहां भी कहीं कंक्रीट बन रहे किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री में, तो उसके अंदर हमने प्रीकास्ट लिंटल ये है कि आपने उनको स्पैन बता दिया कि 3 फीट का स्पैन है, तो वहीं से वो जो है ना एक कंक्रीट की बार बन के आएगी, तो वो आपकी पहले ही बनकर आएगी इंडस्ट्री से, ठीक है, साइड से, और वो आपने अपने साइड पे लाके बस रख देनी है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रीकास्ट लिंटल्स। लेकिन जो आपके साइड ऑन साइट लिंटल्स बन रहे होते हैं वो ये होते हैं कि आपने अपना कंक्रीट आपका आ गया, ठीक है, साइट के ऊपर, और फिर जो आपने आप साइट के ऊपर जो है ना उस पूरा वो जो आपने एक कंक्रीट बार क्रिएट करनी है फॉर लिंटल पर्पस, वो आप साइट के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो फॉर स्मॉलर स्पैन्स यू कैन हैव दिस प्रीकास्ट लिंटल्स, जो कि हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, वो प्रीकास्ट लिंटल्स होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑफ स्मॉलर स्पैन्स। लेकिन अगर आप किसी लार्जर स्पैन के लिए कंक्रीट लिंटल यूज कर रहे हैं तो वो फिर प्रीकास्ट नहीं हो सकते, वो प्रीकास्ट हो सकते हैं बट प्रीकास्ट इज नॉट वेरी रिकमेंडेबल देयर, ठीक है। तो जहां आपके पास लार्जर स्पैन हैं तो वो फिर आप साइट के ऊपर कंक्रीट लिंटल्स बनाते हैं। again the depth of lintel depends upon the span. फिर हम इसके अंदर पूरा वो कैलकुलेट होता है कि एक इतनी जो आपकी डेप्थ ऑफ कंक्रीट है वो इतना स्पैन का लोड जो है ना वो बियर कर सकती है। तो दैट इज नॉट योर डोमेन, बेसिकली दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियर डोमेन के, उसमें आपको जो है ना वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन कि जो है ना आपने अगर इतनी डेप्थ है आपके, इतना स्पैन है, इतने स्पैन की आपकी ओपनिंग है, तो आप उसके ऊपर जो है वो इतने थिकनेस को जो है वो लिंटल डाल लें। अगेन दैट द थिकनेस ऑफ लिंटल इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डेप्थ, द size of the span, and also on the material which we are using for lintel. If because for example if the same span, if we have like 10 feet span, तो जो उसका if we have a wooden lintel for it तो उसकी depth ज्यादा होगी, because wood is not very durable material जिसके अंदर बहुत ज्यादा strength हो, ठीक है। but as compared to that concrete have a lot of strength। तो अगर हमने उसी सेम 10 फीट के स्पैन में कंक्रीट का लिंटल डाला है तो दैट वुड बी वो क्या से कहेंगे कि उसकी डेप्थ जो है वो कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंक्रीट हैव मोर स्टेबिलिटी, मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू वुड। ये चीज सबको समझ लग रही है? वैसे भी जब जितनी बात अभी तक मैंने की है सबको समझ लग रही है बच्चों? सब सो तो नहीं गए हो? यस मैम, समझ लग रही है। समझ लग रही है? सबको समझ लग रही है? ओके So, the lintel depth is depend upon the span and is also depend upon the material which we are using for lintel. So, I think lintel is enough for today. We'll continue arches in our next lecture because अभी आप लोग इतना ही absorb करो. I think it would be difficult for you कि आप फिर जो है वो इतना ज्यादा भी absorb कर सको. तो इज दैट ओके? या फिर आर्च भी कर लें, आर्चेस भी कर लें? नो मैम, इट्स ओके। नो मैम, मैम कर ले थे आर्ट्स। नो मैम, नो। ओके, सो देयर इज वन वोट ऑफ कि हम आगे आर्चेस भी पढ़ लेते हैं, देयर लॉट ऑफ वोट्स कि हम मैम यहीं पे स्टॉप कर दें। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। आप लोग लेंटल्स को एब्जॉर्ब करो, ठीक है। और आई वांट यू कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, आप अपने इर्द गिर्द उसको ऑब्जर्व करो, अपने घर में ऑब्जर्व करो। मे बी आपको वो लिंटल इस तरह नजर ना आ रहे हों, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो पेंट वगैरह में कंसील हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह भी मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं वो आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहे होते कि अगर वो आपको तब नजर आते हैं कि जब वो पेंट में हमने कंसील ना किए हो। हम तो ऊपर वो पूरी एक रगड़ाई करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम उसको पेंट कर देते हैं, तो वो जो हमारे लिंटल्स होते हैं वो नजर नहीं आते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आपको किसी जगह पे लिंटल नजर आ रहा है तो आप देखो कि वो कितना स्पैन है, वो कौन से मटेरियल का लिंटल डला हुआ है उसके ऊपर, और उस लिंटल की कितनी डेप्थ है। स्पेसिफिकली अगर आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाते हो ना,
तो वहां पे इस तरह वो कंसील नहीं होते मेजरली, कभी कंसील होते भी हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने कंसील नहीं होते, तो आप वहां पे आपको वो लेंटल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इन टू अंडरस्टैंड बेटर आप गूगल पे डिफरेंट तरह के लेंटल्स सर्च कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ आ सके। देखो अगर ये जिस तरह का हम लोगों का सब्जेक्ट है मेथड एंड मटेरियल या फिर टेक्निकल ड्राइंग वगैरह, not just these subjects, your whole field is related to the प्रैक्टिकलिटी। अगर आप इस फील्ड की प्रैक्टिकलिटी को साथ साथ ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आपने आज यहाँ लिंटल पढ़ ली है, अभी आपको ये सब समझ लग रहा है कि हमने मैम ने ये बताया, ठीक है, ये चीजें समझ लग गई हैं, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं देखोगे और आपके माइंड में ये जो सारा लेक्चर है वो सिर्फ एक थ्योरी में रहेगा, तो आपको ये चीजें भूल जाएंगी। अनटिल एंड अनलेस की जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिकलिटी देखो, आप देखो कि वो किस तरह वो चीजें बन रही हैं, फिर आपको वो चीजें अंडरस्टैंड होंगी। और व्हेन यू विल गो इन द मार्केट आफ्टर ग्रेजुएशन तो वो चीजें आपको पता होंगी। अगर आज आप लिंटल पढ़ के भूल जाएंगे ना, तो व्हेन यू विल गो इन द मार्केट एंड समवन आस्क यू कि भाई आपने ये ड्राइंग में लिंटल नहीं लगाया हुआ, तो आप कहेंगे लिंटल क्या होता था, पढ़ा था लिंटल होता है कुछ, लेकिन अब याद नहीं है कि लिंटल होता क्या था। तो जो भी आप पढ़ते हो आप उसको जो है ना कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करते रहो, ताकि वो चीज आपके माइंड में फिक्स हो जाए, आपको वो चीजें पता चल जाए कि स्ट्रक्चर में ये चीजें होती हैं। जिस तरह अगर हम लोगों ने पहले मटेरियल्स के भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सैनिटरी अप्लायंसेस की मार्केट विजिट की है, तो आप लोगों ने वो उस टाइम तो की है, ठीक है, आपको अभी वो चीजें फिर भी फ्रेश होंगी आपके माइंड में, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भूल जाएंगे, आपको भूल जाएगा कि मार्केट में किस किस तरह की चीजें अवेलेबल है। एंड आफ्टर एवरी 10 डेज हमारी मार्केट जो है ना वो अपग्रेड होती है, ठीक है, उसके अंदर और नए नए मटेरियल्स आ रहे होते हैं। तो if you want to be in that field in future, तो कीप इन टच विद दैट प्रैक्टिकलिटी, कीप इन टच विद द मार्केट, ताकि आपको मटेरियल्स का पता हो। ये ना हो कि जब आप लोग कल निकल के मार्केट में जाओ तो आपके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज हो, क्योंकि वी डोंट नीड दैट बुकिश नॉलेज इन आवर फील्ड। we need the practicality। If you know a lot of materials, और अगर आपने मार्केट से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे और आपको मटेरियल्स का बहुत ज्यादा पता होगा, तो कल को जब आप जाओगे फील्ड में तो आपसे जब क्लाइंट कोई पूछेगा ना कि मैं कुछ इस तरह का मटेरियल लगाना चाह रहा हूँ, तो आप क्योंकि मार्केट से कनेक्ट हो गए, यू विल नो अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, तो आप उसको क्विकली बताओगे कि हाँ आप इस तरह टाइप का मटेरियल चाह रहे हैं ना, तो ये वाला मटेरियल हो सकता है, और ये मार्केट में हमें इस तरह से अवेलेबल है और ये इस रेंज में अवेलेबल है। तो you have to know these things and you have to be more practical about your field। तो ऑल आई एम सेइंग इसके जो आप लोगों ने लिंटल आज पढ़ा है, इसको अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ लिंटल होता है, ठीक है। तो आई जस्ट टेक द अटेंडेंस नाउ। आई थिंक कौन कौन है, आयशा, दुआ, कायनात, महक, साद, समन, शानजे एंड जारा। जारा अजमल ने नहीं ज्वाइन किया। जारा अजमल ने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी ना अभी, आई थिंक। यस मैम, की थी लास्ट। ओके, चलो ठीक है। नाउ यू कैन लीव आई थिंक, एंड एवरीवन टेक केयर एंड बी सेफ प्लीज। कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो हो ना, अगर बाहर भी जाते हो तो प्रॉपरली मास्क यूज करो, अपने हैंड्स जो है अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो और हाथ धोते भी रहो। सो एंड आई होप एंड लेट्स जस्ट प्रे कि ये कोविड की सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाए, सो वी कैन गो बैक टू आवर कैंपस एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज। So I think that's all for today. Everyone be safe and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम।